Hello everyone, welcome to CommerceNet Scholars. Today we'll be starting with a very important and relevant unit for our NTA NET JRF examinations, that is our Unit 8 concerning marketing management. In this unit, we'll not only understand what marketing is all about, but we'll also discuss in detail the concept of marketing, the evolution of marketing, the marketing channels, the 4 P's of marketing, and we'll also discuss in detail about consumer behavior. So this unit is quite interesting and at the same time really important for our examinations. So I would advise you to study this unit in quite detail, because most of the times, almost every year, there have been questions from this unit, and missing this unit will ultimately lead you to losing of marks. So let's start with today's video. As far as today's video is concerned, we'll discuss about the concept of marketing, the evolution of marketing, and approaches of marketing. So let's proceed with today's video. But as you all know, a reminder for you all before starting, do watch the video till the end to boost up your knowledge. Give it a like if you really like the video. Share it with your friends as much as possible. And most important of all, subscribe the channel if you haven't subscribed yet. Let's proceed with today's first topic, that is marketing. What marketing is all about, let's understand. As far as the definition is concerned, I have highlighted one important definition, because most of the time in the examination there are questions from the definitions itself. आपको कोई एक फिलोसोफर का नाम दे दिया गया, प्रोपाउंडर का नाम दे दिया गया, ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया गया, और आपसे पूछा जाता है कि इन्होंने जो डेफिनेशन पास ऑन किया था वो कौन सा है, या फिर आपको डेफिनेशन दे दिया गया और ये पूछा जाता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने, किस फिलोसोफर ने या किस प्रोपाउंडर ने दिया है. So for that I have highlighted this particular definition. As far as the definition by American Marketing Association is concerned, marketing is the process of planning and executing the conception, pricing, promotion and distribution of ideas, goods and services to create exchanges that satisfy individual and organizational goals. ये तो डेफिनेशन की बात हो गई. याद आपको करना नहीं है क्योंकि आपका थ्योरेटिकल पेपर नहीं है, आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आंसर देना है. बट इसको हो सके तो 2-3 वर्ड्स इसके याद रखना है, सो दैट अगर ये एग्जाम में आए तो यू कैन क्विकली कैच इट कि ये अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन का डेफिनेशन है. नाउ एज फार एज मार्केटिंग इज कंसर्न, इतने डिफिकल्ट लैंग्वेज में आपको शायद ना समझ में आया हो, सिंपल कर देते हैं इस चीज़ को. मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो आप कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, से फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आप कोई सर्विसेज में डील कर रहे हो. अब उन प्रोडक्ट और सर्विसेज को आप अपने लिए तो नहीं बना रहे हो ना, आपको उसे कस्टमर्स तक पहुंचाना है, क्योंकि अल्टीमेटली कस्टमर्स ही हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेकर के जाएंगे, जो आपको प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करेंगे. तो आपका प्रोडक्ट, आपका सर्विस अगर मैन्युफैक्चर होने के बाद भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में ही पड़ा हुआ है तो भाई वो किस काम का है. सो अल्टीमेटली यू नीड टू रीच टू दी कस्टमर्स, और कस्टमर्स को रीच करने का बेस्ट तरीका होता है मार्केटिंग करना. प्रोडक्ट को अच्छे से अच्छा मैन्युफैक्चर करना, क्वालिटी सर्विसेज देना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगले बंदे को क्या पता कि आप क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसे कैसे पता होगा कि आप मार्केट में बाकी प्रोडक्ट से अच्छा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो और उनसे कहीं बेहतर प्राइसेस पे मैन्युफैक्चर कर रहे हो. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज एन ऑर्गेनाइजेशन, फॉर यू एज a producer, for you as a manufacturer, to advertise your product in the market, to involve into the marketing activities so that your product can grow in the market. अगर हम मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करें तो इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज विच फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड बायर्स. मार्केटिंग में बेसिकली 2 ब्रॉड कैटेगरीज कौन सी हैं जो इन्वॉल्व है, 2 ब्रॉड पार्टीज कौन सी हैं, प्रोड्यूसर है और बायर है. प्रोड्यूसर जो कि आपका गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, और बायर्स हो गए आपके अल्टीमेट कंज्यूमर. अब मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम क्या है कि प्रोड्यूसर से उस पर्टिकुलर गुड या सर्विस को हमारे कंज्यूमर्स तक, हमारे बायर्स तक पहुंचाना. अब या तो सिंपल फॉर्म में ये डायरेक्ट डीलिंग हो सकती है, या फिर डिफरेंट चैनल्स इस्टेब्लिश हो सकते हैं इसके बीच में, या फिर ये ऑनलाइन फॉर्म में आप अपने बायर्स तक पहुंचा सकते हो. एनीथिंग दैट सूट्स योर रिक्वायरमेंट, दैट इज नेसेसरी फॉर योर प्रोडक्ट टू ग्रो इन दी मार्केट. तो ये सब कहलाता है मार्केटिंग मैनेजमेंट, कि अपने प्रोडक्ट को आप आगे लेकर के कैसे जाओगे, उसके लिए प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना चीज़ों को, डायरेक्टिंग करना और कंट्रोल करना उन एक्टिविटीज़ को जो आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस को और आपकी मार्केटिंग या सेल्स जो भी एक्टिविटीज़ आप इन्वॉल्व हो रहे हो उसको कहीं ना कहीं हैम्पर कर रही हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट मार्केटिंग कंसेप्ट.
लेट्स प्रोसीड विथ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग। एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग के 4 इंपॉर्टेंट फेजेस हैं। सबसे पहला है हमारा प्रोडक्शन एरा, दूसरा है हमारा सेल्स एरा, तीसरा है हमारा मार्केटिंग एरा और फोर्थ है हमारा सोसाइटल मार्केटिंग एरा। अगर हम प्रोडक्शन एरा की बात करें तो बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था समवेयर इन 17th सेंचुरी एंड इट कंटिन्यूड टिल लेट 1920s। बेसिकली इसमें जो एक डोमिनेंट फीचर था इस एरा का वो ये था कि डिमांड और सप्लाई का जो फैक्टर था वो बहुत पैसिव था इस एरा में, और डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज़ को इग्नोर किया गया था। बल्क में आप प्रोडक्शन ही करते जा रहे हो, आप ये ध्यान ही नहीं दे रहे हो कि आपका प्रोडक्ट जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, जो प्रोड्यूस कर रहे हो, वो कंज्यूमर्स तक पहुंच भी रहा है कि नहीं, उन्हें उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है भी या नहीं। तो बेसिकली फोकस किस चीज़ पे था, सिर्फ बल्क में प्रोडक्शन पे, इसलिए इस एरा को हम बोलते हैं प्रोडक्शन एरा। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट एरा की बात कर लेते हैं सेल्स एरा, जो कि स्टार्ट हुआ था समवेयर इन लेट 1920s एंड इट कंटिन्यू टिल समवेयर मिड 1950s। अगर हम इसकी बात करें सेल्स एरा की, तो अब क्या प्रोड्यूसर्स ने किया, मार्केटर्स ने किया कि वो सिर्फ अपनी सेलिंग जो उनके एफर्ट्स थे उसको सिर्फ प्रोडक्शन पे फोकस ना करके अब उन्होंने सेलिंग पे फोकस किया। उन्होंने ध्यान देना शुरू किया कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं मार्केट के लिए, उसको अल्टीमेटली हम कंज्यूमर्स तक, अपने बायर्स तक कैसे पहुँचाएं, उन तक हम सेल्स कैसे करें। तो इसलिए इस एरा का नाम हो गया सेल्स एरा, जिसपे फोकस था हमारे सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। उसके बाद आया हमारा तीसरा एरा, जो कि था मार्केटिंग एरा। मार्केटिंग एरा में जो कंपनीज थी दे बिगैन टू रियलाइज कि वो फेल हो जाएंगी अगर वो कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई नहीं कर सकती हैं। समझ में आ रही है आपको बात कि सेल्स एरा में देखो, प्रोडक्शन में क्या किया हमने, बल्क में प्रोडक्शन किया, हमें नहीं पता कस्टमर को क्या चाहिए। सेल्स में हमने क्या किया, हमने प्रोडक्शन किया लेकिन उस प्रोड्यूस्ड गुड्स और सर्विस को कस्टमर्स तक पहुंचाया, लेकिन अभी भी हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया कि कस्टमर्स को क्या चाहिए। लेकिन मार्केटिंग एरा में हमने ये रिकॉग्नाइज करना शुरू किया कि एक्चुअली हमारे कस्टमर्स को चाहिए क्या हमसे, उनको किस प्रोडक्ट की नीड है, उनको क्या फीचर्स चाहिए, उनको क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, हर एक चीज़ हमने रियलाइज़ करना, असेस करना शुरू किया मार्केटिंग एरा में। और ये चीज़ मार्केटर्स को, ये चीज़ प्रोड्यूसर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को समझ में आ गई कि कस्टमर्स की नीड्स जब तक सेटिस्फाई नहीं होंगी, कस्टमर्स की बेसिक नीड जब तक आप नहीं समझोगे, मार्केट में ग्रो नहीं कर पाओगे, मार्केट में एक्सेल नहीं कर पाओगे। अगली बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट एरा की, सोसाइटल मार्केटिंग एरा के बारे में। नाम से ही आपको बहुत हद तक समझ में आ रहा होगा कि कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई करना ही एक एम नहीं रह गया था, बल्कि कस्टमर्स का वेलबींग, उनका ओवरऑल सोशल वेलबींग पे भी फोकस किया जा रहा था। यानी कि आपने अपने कस्टमर्स की नीड्स और रिक्वायरमेंट को असेस किया, लेकिन आप कुछ भी मैन्युफैक्चर करके आप उन तक नहीं पहुंचाओगे। आप ये चीज़ ध्यान रखोगे कि जो प्रोडक्ट्स, जो सर्विसेज आप उन तक पहुंचा रहे हो वो अप टू दी स्टैंडर्ड्स हो, और किसी भी सिचुएशन में वो सोसाइटी को, किसी भी सिचुएशन में वो आपके कस्टमर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। क्योंकि अगर आप अपने कस्टमर के साथ लॉयल नहीं है तो आपका कस्टमर आपके साथ लॉयल नहीं होगा, और अगर आपके पास एक लॉयल कस्टमर बेस नहीं है तो आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट गेन नहीं कर सकते हो। दिस इज अ सिंपल well known understood fact that the organizations, the companies, the marketers, the producers need to understand. So this was all about evolution of marketing. अब हम आज के लास्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, जो कि है अप्रोचेस एंड फिलोसफीज ऑफ मार्केटिंग, जिसमें अगेन वी हैव द सेम 4 heads, that is production concept, sales concepts, marketing concept and societal marketing concept. ये हमारे approaches हैं marketing के. As far as the first one is concerned, production concept, we entirely, the organizations are entirely focusing on production. They are focusing on production in bulk. They are least bothered that whether the customer is actually in the need of that particular product or not. और उन्हें ये भी नहीं पता कि उनकी प्रोडक्शन जो वो कर रहे हैं उसके हिसाब से सेल्स कितना हो रहा है। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्शन कंसेप्ट। सेल्स कंसेप्ट में हम सिर्फ ना कि सिर्फ हम प्रोडक्शन पे फोकस कर रहे हैं, बल्कि हम सेल्स पे भी फोकस कर रहे हैं कि जो प्रोडक्ट हमने मैन्युफैक्चर कर लिया है, जो प्रोडक्ट हमने बनाया है, जो सर्विसेज हमारे पास हैं, वो कस्टमर्स तक पहुंच पा रही है या नहीं। हम ये चेक करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट को रीच करे, हर एरिया ऑफ मार्केट को, हर सेगमेंट ऑफ मार्केट को रीच करे। हमें अपनी सेल्स को बढ़ाना है। ये हो गया हमारा सेल्स कंसेप्ट।
तीसरा है हमारा मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट में हमें सिर्फ प्रोडक्शन और सेल्स का काम नहीं देखना है, हमें ये भी देखना है कि जो हम बना रहे हैं क्या कस्टमर को वो चाहिए भी या नहीं, और अगर नहीं चाहिए तो कस्टमर को क्या चाहिए ये फाइंड आउट करना हमारा काम आता है मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर, और उसके हिसाब से फिर हम अपनी प्रोडक्शन और सेल्स की एक्टिविटीज़ को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और लास्ट है हमारा सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट, जिसमें हम ये फोकस करेंगे कि हमारा जो कस्टमर है उसका ओवरऑल और सोशल वेलबींग भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब तक आपके पास एक लॉयल, एक फेथफुल, एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस नहीं होगा आप मार्केट में एक्सेल नहीं कर पाओगे, क्योंकि मार्केट में लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स गेन करने के लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग लॉयल कस्टमर बेस होना चाहिए, जो वर्स्ट सिचुएशंस में भी आपका प्रोडक्ट प्रेफर करे परचेज करने के लिए। So this was all about today's introductory video of marketing management. I hope all the concepts are clear to you all, whatever I have discussed today. Any doubts you can mention down in the comment section below, and if you have really liked this video, do give it a like, subscribe it, that was very important for you. It's free of cost, no charges for it, and this is, I guess this is something very unique. You are getting knowledge for free, so I think you can subscribe the channel quite easily. So that's all for today. Thank you.